पाकिस्तान के इस एपिसोड में खुश आमदीद। आपके कुछ दोस्त होते हैं कि जिनको आप जानते तो कई सालों से हैं, 15 साल से, लेकिन दोस्ती 5 साल 4 साल पहले होती है। अजीब सी बात है। और ये वो दोस्त होते हैं जिनसे आप मिलें तो वक्त गुजरने का पता ही नहीं लगता, आप बातें करते जाते हैं और थोड़ी देर बाद आपको एहसास होता है कि आप भी नॉर्मल नहीं हैं और वो आपका दोस्त भी नॉर्मल नहीं है। हम एक और ही पैरेलल वर्ल्ड में जिंदा है और उसी को एंजॉय कर रहे हैं। आज एक ऐसी दोस्त से आपको मिलवाने जा रहा हूँ, सुपरस्टार, पाकिस्तान की म्यूज़िक का एक आइकॉन। एक डिफरेंट इन्होंने अंदाज़ दिया मौसीकी को पाकिस्तान के अंदर और सब ने उसको एंजॉय किया। सब ने कहा हाँ, शी इज़ डिफरेंट, शी इज़ गुड, इन जैसा कोई पहले नहीं था, एंड वी लाइक हर। ये कॉम्बिनेशन मिला हमें कुरातुलैन बलोच में। क्यूबी, वेलकम। थैंक यू। बड़ी बातें करते हैं आप। हालांकि मैं बड़ा शाय इंसान हूँ, कभी बातें करने का शौक़ नहीं हुआ, लेकिन आपको देख के सोचा कुछ बातें कर लूँ। बड़ा मज़ा आता है वैसे आपके साथ बातें करके। कैसी हो? आई एम गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। या जो मैंने तुम्हारा इंट्रोडक्शन कराया और ये कहा कि क्यूबी के साथ बैठ के गप्पे लगाएं तो एक तो वक्त गुजरने का पता नहीं लगता, और दूसरा ये कि आपको एहसास होता है कि दुनिया में कोई भी नॉर्मल नहीं है। नॉर्मल नहीं, हम सब पागल। you're talking ना तो it's so candid. It's not वो कहते हैं ना choreographed in any way. You're not thinking, you're just flowing. And it's hard for me to have such a connection with people, and I'm so glad that I have it with you because you have been around for a while. You know, you have seen different eras of time, I suppose, and you have, and different eras of QB also. And that too, that is true. So, you know, to sit with you and have your perspective on things that I am interested in is quite refreshing. You know, it's really nice actually to find that in somebody. Yeah. QB पिछले साल की बात है, QB आई तो कहती है ओ रात के कोई 10-11 बज रहे थे, हाँ तौसीक आई हैव सम क्वेश्चंस टू डिस्कस। मैंने कहा QB मेरी सुबह 9 बजे शूट है, सो जाओ जाके। Yeah. So that's a beautiful connection that we have. That is. अच्छा, अब मुझे ये बताओ सबसे पहले कि तुम जब छोटी थी, लाइक अ टीनेजर, 12 साल 13 साल 14 साल की, तो तुम क्या यही सोचती, यही क्यूबी थी जिसको तुमने मैनिफेस्ट किया था? In simple words, yes. Okay. Yes. Which is good. Yeah. I wouldn't say I manifested fame because if I had known the consequences of it, I would have said, never mind, I ought to do something else. But yes, I always had the knack for singing, and I always enjoyed it. And I was like, you know, I want to sing and I want to do something with my voice because at an early age I knew that I could hold up a tune or could sustain my voice for as long as I wanted because I was an athlete as well. I was quite active, and so that gave me that edge, I suppose. But fame you did not manifest. No, I did not. But money you did not manifest. I did not. Yeah, because those were not my priorities. I suppose I wouldn't say I was born in a privileged household, but I never consciously prioritized it. I come from a humble background, like, you know. But यही था कि वो जो आप ढूंढते हैं ना purpose in life, that fulfillment inside. I think I had it from a very young age कि where do I belong, what am I supposed to do with my time, what is more fulfilling, what is more meaningful to me. क्या ये questions अभी भी valid नहीं है क्यूबी के लिए? अभी तुम इसी search में हो? I think it's very interesting you say that. I think it's with everybody because if you're not evolving, then yes, your fulfillment, you know, kind of dissipates or stagnant हो जाती है maybe, or you become kind of boring, I suppose.
I could be wrong. But if you're evolving, if you're changing with time, and when I'm not saying externally, but internally, when you're reflecting, when you know you become aware of your blind spots, when you feel the need to change yourself for the better. So आपका purpose फिर I think time के साथ उस तरह change होता है. क्यूबी अगर हिट ना होती बैक इन द डे और एज अ सिंगर फ्लॉप हो जाती, लोग ना पसंद करते तुम्हारी इस यूनिक आवाज को और इस यूनिक पर्सनैलिटी को, हो भी सकता था. Yeah, of course. तो फिर क्या करती? That's a very interesting question. I have never thought about that. But now that you have asked me, and if I think about it, I would be, I don't know, married with kids somewhere? I don't know. Married with kids? Somewhere. So इसको तुम ऐसे क्यों कह रही? क्या ये बुरी चीज है? Yes, I suppose now it What? is. Marriage is a बुरी चीज? Yeah. Very controversial thing to say. You know, and the most favorite, it's one of the most favorite topics of the subcontinental people. Like जो हमारी सोसाइटी के लोग हैं, उनका फेवरेट टॉपिक जो है ना वो शादी है. भाई अच्छा, मैंने ये सवाल तुमसे बिल्कुल नहीं करना था, नहीं किया है. प्लीज आप लोग गवाह रहें, ये खुद लेके आइए इसको, इस I mean, कॉन्वर्सेशन. यू वांटेड टू? I wanted to? No, it's हमारी आप सोसाइटी में देख लेना कि अगर लड़की जो है वो डॉक्टर भी है या लॉयर भी है या any part of profession that you know she wants to actively participate in, the priority from her family will always be for her कि नहीं बेटा आप शादी करें, घर इसमें संभालें. क्या हर्ज है? मैं क्यूबी ना बन जाती तो मैं शादी करके बच्चे पाल रही मैं ना होती. करती, अरे मैं ना तो इसमें करती. क्या हर्ज है? पेरेंट्स करते हैं ना. I think they kind of have a strong say in what their daughters do. I suppose not anymore. Maybe in some class of people it's not true anymore. What is your take on शादी? I think it's waste of time. And in fact the research says that marriage tends to profit and benefit men more than women. And on the second level, women tend to be less happy than men in a marriage. And I find that very true. Are you happy? I am very happy. I mean, I sometimes do miss the feeling of having a companion, but having to maybe barter or bargain for what I have, I wouldn't. बच्चे? Oh, hell no. No. Why? There's so much chaos and there's so much suffering in the world. Why do you want to bring, you know, new life and tell them, okay, you know what, this is the world, the chaotic world that now you have to survive it, not even thrive, survive. तो मदरहुड, माँ को औलाद चाहिए होती है, बच्चा चाहिए होता है, वो कहाँ गया फिर सारी चीज़ें? I sought it for some time, but I don't think that some people are cut out for it, and I'm one of those. And ये decision मेरा नहीं है, ये आपको ऊपर से कहीं से कहते हैं ना वही आती है. Maybe मेरी किस्मत में नहीं है, या I don't think I can fit in that mold. Yeah. तुम्हें इस पे जनरल फैमिली, कजन्स, दोस्तों, फैंस का प्रेशर, क्यों भी शादी कब करेंगी? क्यों जिंदगी में और कोई काम नहीं है नहीं, करने जब के लिए? कैसे हैंडल करती हो इस सवाल को? I mean, it depends who's saying it. If it's my mother, then I have to. उनके लिए अलग जवाब है. Yes. If it's someone who doesn't know me and who doesn't know my history, my background, my experiences, I just don't think it's, you know, even, I mean, I don't even bother discussing that because it's pointless. Yeah. Do you get trolled? Yes. How do you handle it? I don't know if I should disclose this or not, but I have a very, I don't know how to put it, but जो मुझे ट्रोल कर रहा है ना वो अपनी असलियत दिखा रहा है, उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. I really don't care because a part of me somewhat
know who I am, knows who I am. So I don't really let that get to me. I don't. कोई फर्क नहीं पड़ता है. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. Yeah. सबसे nasty trolling comment क्या था? I don't even remember. I don't. I think I पढ़ती नहीं हो? No, I do sometimes, not all the time. But I think I have been lucky where I have never gotten the extremes side of the trolling. Well, as far You as play I'm- safe, no? I'm not sure. But again, अगर ऐसे लोग हैं भी सही, तो शुक्र है आप उनको अपनी रेडार में नहीं ला रहे, उनसे तो दूर है. बेहतर ही है. बिकॉज उस नेगेटिविटी को आप क्या करेंगे अपने आप को एक्सपोज करके. हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री बायस्ड है, nasty है. I think nepotism exists everywhere, and I think music industry tends to be a bit nepo as well. Not in a sense कि यहाँ पे वो वाला नहीं है कि हाँ मेरे वालिद साहब musician थे तो मैं भी musician होंगी. Not that kind of a nepotism, I suppose. What I mean is lobbying. Yes, thank you very much. Lobbying, and you're the own people that you tend to favor more because it benefits you. तो तुमने कोई लॉबी नहीं बनाई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं. तो ये स्टारडम जो है ये कैसे, मतलब एवरीवन नोज क्यूबी हमें बिलबोर्ड्स पे नजर आ रही होती है. Billboards तो खैर नहीं, I'm not a model. नहीं, बिलबोर्ड्स यस. मैंने तो कराची में तुम्हारा उसका कोक स्टूडियो में जब तुम, हाँ, तो बिलबोर्ड्स पे तुम थी ना. अच्छा, मैं बाहर जाती नहीं हूँ ना. I don't tend to go out that much. नहीं, कराची बाहर नहीं, कराची पाकिस्तान के अंदर है. अच्छा, नहीं बाहर ऐसे लाइक घर से बाहर that much. What was the question again? कि ये फिर स्टारडम कैसे एक्वायर किया? अगर लॉबिंग नहीं थी तो फिर हाउ डिड यू? I think if you believe in yourself और तवक्कल हो अगर आपको, तो you don't have to work too much for it. Too much in a sense के PR के लोग बुलवा लिए, कोई टीम हायर कर ली. I suppose some people find it helpful, but I believe कि जितना organic हो उतना बेहतर है. हाँ. You like money? I mean, who doesn't? Okay. I mean, you must have enough where, even in fact, there's a book which I'm forgetting about the name of the Sufi saint, but I think that the Sufi saint that I'm talking about lived in the 12th or the 13th century. उन्होंने कोई book लिखी थी, Purification of the Heart, which was translated by Sheikh Hamza Yusuf, that I admire a lot. Usme, one of the chapter was that you must have enough where you're not dependent on anybody. So yeah, I like money as long as, I have that level of independence and freedom where I'm not dependent on anybody, yeah. क्यूबी की आपको एक मज़े की बात बताऊं. आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि हम बहुत अच्छे दोस्त भी हैं. क्यूबी को ना एक क्रेजी हो जाती है, इसको ना एक बुखार चढ़ जाता है एक चीज़ का. Yeah. और वो फिर अगले 3 महीने वो बुखार नहीं उतरता. वो एक चीज़ होती है. Yeah, that is true. मतलब अगर इसको बुखार चढ़ जाएगा ना कि जी ये जो ऐनक है ये कहाँ बनी और कहाँ एक्सपोर्ट हुई, इसका शीशे का जो ये कहाँ मैन्युफैक्चर होता है, तो इसको पता लगेगा कि ये इंडोनेशिया का एक गांव है वहाँ सबसे, तो ये टिकट कटा के इंडोनेशिया चली जाएगी उसके रिसर्च के लिए, है ना. तुम्हारा बहुत रिसर्च क्यूरियस माइंड है. आई एम टेलिंग यू. एक दफ़ा मैं आपको बताऊं, क्यूबी एक दफ़ा आई मेरे पास, पता नहीं कितने साल पहले की बात है. अल्लामा इकबाल की शायरी के ऊपर कहती है, तौसीक प्लीज सिट विद मी एंड तुम्हारी उर्दू और ये, बट टेल अस अबाउट दैट. वो जो क्यूरियोसिटी थी, वो अल्लामा इकबाल की शायरी, उसको जानना. फिर अचानक आजकल तुम गाड़ियों के अंदर क्यूरियस हो, फिर ऐनक में हो जाएगी ये क्यूरियस, फिर ये कहेगी अच्छा बिल्लियाँ जो हैं, बिल्लियाँ शेर से पहले आई थी या शेर बिल्ली से पहले आया? नहीं, इतना भी अब क्रेजी नहीं है, लेकिन टेल अस अबाउट वो जो दिस है, ये क्यूबी क्या है जो So the thing घुस जाती है एक चीज़ हाँ, वो जो अल्लामा इकबाल की वो शिकवा जवाब शिकवा के लिए I came to you, I remember, because
I was asked to sing Shikwa Jawabi Shikwa for one of the Coke Studio episodes. And I didn't know much, so I came to you. And the reason behind dwelling too much or going a lot deeper into something is doing it with integrity, because I wouldn't say that I know everything, right? And if I don't know anything or much about something, then I should at least make the effort to know enough to make that whatever decision that I need to make. अब वो poetry हो गई या कोई गाना हो गया जिसके बारे में, let's suppose if I am singing something which I'm not able to connect, I will not do it. तुम वो किसी के बाजार में भी गई थी ना, वो क्या? हाँ, लाल शहबाज कलंदर के बाजार पे मैं हाज़िरी देने गई थी right before I sang लाल मेरी on Coke Studio, because I wanted to know a little more and then get his blessings before I क्या कहते हैं उसे, उस पूरे प्रोसेस से गुजरो. yeah, and attempt on singing something sacred, yeah, basically. So, and then you are right on the money, because I get obsessive sometimes. If I get into something, I need to know. And it will take me some time to get over it. Yeah. As long as, as long as I get to know what I need to know, then I'll move on. लेकिन फिर उसके अंदर जो अच्छी बात है, जो मुझे बड़ी अच्छी लगी, कि फिर जब तुम एक लेवल पे जाके जब कंफर्टेबल नहीं होती हो ना, तो तुम कहती हो कि नो, जैसा अल्लामा इकबाल वाली जो चीज़ है. Yeah, I didn't do it. तुमने नहीं किया वो. नहीं किया, yeah. और उसकी वजह क्या थी कि ज़बान and I also didn't feel connected to the thought. yes, maybe? yes, because शिकवा था ना, अल्लामा इकबाल तो शिकवा कह रहे हैं ना एक तरह से अल्लाह से, और मुझे तो कोई शिकवा नहीं था. मेरे अंदर तो उस तरह से कोई टर्मोइल नहीं था उस वक्त, मुझे तो कोई एजिटेशन उस तरह से नहीं थी. So I couldn't relate to it. And I think I was in a place in my life at that point, around that time, where my priorities were something else. So I was like, it's okay. I'm not up for it. क्यों भी तुम पागल हो? हम सारे पागल हैं, आपको ये नहीं पता? आपको पता, ये बात नहीं पता आपको? ये मुझे अपना तो पता था, बाकियों का नहीं पता. हम सारे पागल हैं. Everyone else is just pretending. Some of us just stop pretending. That's the difference. Beautiful. You know what I mean? Yeah. अच्छा, क्यूबिन ने दोबारा पैदा होना हो तो एक नॉर्मल टिपिकल पाकिस्तानी लड़की, पढ़ी, शादी हुई, नॉर्मल बंदा पैदा हो. ये one lifetime is enough. I'm not. अच्छा, you don't want to come back? No. Who wants to come back? Look at the state of the world. Look at the world that we live in. I'm not being ungrateful, but I feel like human beings have made a mess out of themselves. And in that process made life difficult for other human beings. And why I would even bother coming back? Why not? Unless Come back, enjoy a different, maybe come back after 1,000 years and see कि क्या हुआ. No, I'm going home. When we all die, we're going home. This is not home. अच्छा, really? Yeah, this is what I believe. This is what makes sense to me, because वो जो एक void होता है, जो लोग fill करते हैं, कोई brand की गाड़ी ले ली, brand का bag ले लिया, बड़ा सा महल बना लिया, जो external validation में लोग चीज़ वो जो ढूंढते हैं उस void को fill करने के लिए, वो basically that soul is yearning to basically go back, which a lot of the Sufis also talk about, especially Maulana Rumi, I think, yeah. And I much तुम rather वापस नहीं आना चाहोगी, तुम वापस इस दुनिया को दोबारा से एक्सपीरियंस? मैं तो ज़रूर चाहूँगा. मैं भी 200 साल के बाद दोबारा आऊँ और मैं देखूँ ये पाकिस्तान और ये का क्या बना? क्या? Why not? No, thank you. अच्छा. Yeah. I'm not a nationalist either. I'm not a nationalist. I wouldn't say
I have been actively, I say I'm actively working on unpatronizing myself. No, that's not the word. I'm not a patriot anymore. Sorry, that's what I meant. अच्छा, ओके ओके, oh that's interesting. लेकिन मेरा मतलब है पाकिस्तान, ये पूरा खित्ता, अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, जो वॉर और फिर इंडिया और श्रीलंका, तो 100 साल 200 साल के बाद ये क्या है? It'll be a mess. अमेरिका का क्या हुआ? लोग कहते हैं इम्प्लोड होने वाला है 25 साल में. अमेरिका इम्प्लोड हुआ नहीं हुआ, यूरोप कहाँ खड़ा है? तो आई थिंक इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग इफ आई एम born again after 200 years as a child, maybe in Venezuela, I don't care, or Mexico, or पर ये New सोचने वाली Zealand. बात नहीं है कि ये जो आप मुल्कों के नाम ले रहे हैं, ये मुल्क तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, ये बॉर्डर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करते थे. हाँ, some right? 1000 years ago. So आगे इनका क्या बनेगा उससे मेरा क्या लेना देना? You know? अच्छा. I really don't care अफगानिस्तान का क्या बना, पाकिस्तान का क्या बना. Yeah, as a people I would care about the people that, you know, I as a society that I've been part of. If you talk about curiosity, I would say कि मेरी curiosity वहाँ होगी rather than भी वो अमेरिका का क्या बना, यूरोप का क्या बना. ये सारे जो है ना, मैंने आपको इसलिए कहा था कि ये मेरे से बातें मत कीजिएगा. ये मैंने नहीं की. Because मेरा I will get in trouble if I really. रिकॉर्डिंग पीछे करें, अभी दिखाएं. ये मैंने नहीं, ये तुमने खुद you brought it up to yourself. No, I didn't bring that up. You I didn't bring did. that up. You did. You did. Anyways. अच्छा, tell me. जिस भालू ने तुम पे अटैक किया था, उसका अब क्या हाल है? वो बेचारा नहीं उसका. Oh God. अच्छा हाँ, ये भी हुआ था. Oh jeez. उस बेचारे का, I hope he's alive or she's alive. I think it was a she because she had a cub with her. Yeah. I hope she's okay. नहीं. tell me more. What do you want to know? मतलब मैं तुमने मौत को इतना करीब से देखा, Yeah. तो शायद Oh उसने my भी, God. उस भालू ने भी मौत को इतने करीब से देखा क्योंकि तुम लोग की भालू फाइट जो हो रही थी. नहीं, यू नो, ऑन अ सीरियस नोट, तुमने उस वक्त फील किया था कि अब दिस इज इट? Yes, I had for a millisecond I had the realization that this was it. Really? Yeah. So This is really. I feel when people talk about hope and the will to survive and the flight and fight mode that kicks in, I experienced all of that in those few seconds that when the bear was on top of me. So basically what happened was, I know your audience will be very curious. I was in my tent just about to drift off into sleep. I had no food in my मैं tent. साथ साथ उर्दू में तर्जुमा करूं या थोड़ा सा तुम उर्दू अच्छा, में मैं भी भी सुना? उर्दू, सॉरी मेरा डिफॉल्ट जो है ये नहीं है कि मेरी अंग्रेजी No, बहुत we अच्छी respect है, that. We respect but that. वो डिफॉल्ट जो है ना वो, एनीवेज, तो वो मैं टेंट में थी. मैं बस अभी कहते हैं ना कि मैं बस अभी नींद में जा ही रही थी कि the bear came on top of me over the tent. टेंट के ऊपर से ही उसने मेरे ऊपर अटैक किया है. और वो मुझे पहले कोई आधा घंटा पहले आवाज़ आ गई थी कि बेर है, कहीं नज़दीक है. और जब मैं दिन के टाइम हम पहुँचे हैं वहाँ, मैं थी और मेरे साथ मुझे असिस्ट करने के लिए एक बच्चा था. तो वो हम जब देख रहे थे स्पॉट टेंट लगाने के लिए, बिफोर द सिक्योरिटी पीपल टोल्ड अस के कहाँ आपने लगाना है, तो the bear poop was everywhere. So even the locals, the people over there told us कि वो रात को आता है, तंग नहीं करता, वो कचरे में बस वो खाना वगैरह ढूंढता है और फिर वो चला जाता है या चली जाती है, whatever. So I had nothing to fear. तो जब मुझे आवाज़ आई तो मैंने कहा I have nothing to fear.
बिकॉज मेरे पास तो खाना भी नहीं है, टेंट के अंदर कुछ भी नहीं है, आपको वो तंग नहीं करते। अच्छा, ये बात भी आई थी कि जी क्यूबी क्या वो खाना वहाँ पे था तो उस खाने की खुशबू पे people आया। people love to speculate. People just, this is one of the reasons I just don't bother with them. The one mistake that I admit is that I had toiletries in my bag. So people who don't know this should know now कि खाने पीने के अलावा कोई भी scented चीज़ है ना आपके पास, which resembles any type of flower or fruit की जो स्मेल होती है, क्योंकि ये तुम्हारे पास क्या सेंटेड चीज थी? मेरे पास शैम्पू और कंडीशनर था ना। तो शैम्पू की जो मेरे बैकपैक में, हाँ मेरे बैकपैक में शैम्पू और कंडीशनर था, जो मेरा दिमाग ही नहीं गया वहाँ कि यार इसको जो है ना सील उसमें कहीं रखना है। उसकी खुशबू पे वो भालू आया। Yes, because in fact, as a matter of fact, the bear came on top of me exactly where that pouch was, which was right next to my head because I was. तो उसका टारगेट तुम नहीं थी, उसका टारगेट वो था। तो उसने जब वो ऊपर गिरा है ना मेरे, तो क्लॉज केम, वो उसके जो नाखून जब आए हैं ना वो एग्जैक्टली मेरे सर पे आए हैं, और मुझे अपने आप को बचाते वक्त जब मेरे बाजू इंस्टिंक्टिवली ऊपर गए हैं तो मेरे बाजू जो थे वो बहुत बुरी तरह और मुझे याद है उसके बाद कई महीने अभी भी तुम्हारे वो स्कार्स तो रहेंगे, स्कार्स अभी भी स्कार्स तो रहेंगे बाजू पे हैं और लाइफ लॉन्ग है। तो तुम्हारे वैसे बाजू बच गए, ये बड़ी बात है, इसलिए कि वो उसकी इतनी चीर फाड़ के कुछ और ही बना देना था। I take it रोई थी तुम? I take it for a fun ride because it's one hell of an experience, to be really honest. This experience has made me more resilient, a little less or little more fearless, and I would say I know exactly what fighting for your life really means, and things you take for granted. मैं रोई, जाहिर है मैं रोई, क्योंकि बड़े गंदे वूंड थे, उसके पंजे जो थे वो बिल्कुल स्किन के अंदर चले गए थे, तो मुझे तो for a moment I thought I had some fractured bones and I was bleeding profusely. So and then the drive down in the middle of the night, 2.5 hour of drive, we covered in about an hour and 45 minutes or something. तुम क्या समझती हो क्यूबी कि ये अब एक बोनस जिंदगी मिली है? Yes, yes. And I feel like people who tend to take risks are always living on a bonus life. Because if you're not taking risk, then वो तुम्हारा एक एक्सीडेंट भी हुआ था ना लाहौर में, मुझे याद है। वो मेरी गलती नहीं थी। नहीं, जो इसमें भालू में तुम्हारी क्या गलती थी? हाँ, ये भी मेरी गलती नहीं, मेरी गलती थी ना शैम्पू रखने की। हाँ, वो आई शुड हैव नोन बेटर। लेकिन स्टिल वो गाड़ी का जो एक्सीडेंट है मुझे याद है, वो भी एक सेकंड लाइफ थी, तो एक तरह से थर्ड लाइफ तुम्हें मिली है। This is my third life. Yeah. You are a cat. I love cats. I know that. Yeah, I do love cats. तुम्हें सिर्फ एक बिल्ली नहीं पसंद पूरी दुनिया में, एक जो आपकी है ना बड़ी सड़ू है, उफ, तो वाह, बट स्टिल मैं उसको फिर भी चुनिया करके ही जाती हूँ। बिल्ली है ना, क्यूट है। कोई एक गाना मुझे बताओ, सिर्फ एक, जो तुम्हें कहा जाए कि तुम चांद पे जा रही हो क्यूबी, और अपना एक गाना लेके जाना है, और तुमने बस दैट इज ओनली वन सॉन्ग जो तुमने। चांद पे क्यों जाना है? अच्छा चलो, मार्स पे चले जाना है, मतलब कहीं चले जाना है। अच्छा, तो वो कौन सा गाना होगा? अपना? ओह लॉर्ड, प्लीज अब ये ना कहना कि ऑल ऑफ देम। I like all of them. I do. I can't pick one. That's like no, you have to. It's like on आपके You are on a podcast. You have to pick one. नहीं, ये तो ऐसे है जैसे 4 बच्चे और आप माँ बाप से पूछ रहे हो कि नहीं जी आप फेवरेट बताएं, आपका फेवरेट कौन सा बच्चा है? बिल्कुल। कोई एक गाना जो तुम समझती हो कि यार अगर मुझे बस मेरे करियर पे ये एक गाना ही काफी है। मेरा इश्क। मेरा इश्क। There are two of them.
मेरा इश्क and oh Lord. And there's one song that's about to come. That is literally. प्लीज मार्केटिंग, अब ये नहीं, टिपिकल नहीं, मार्क, okay. एक गाना जो मेरा अब आने वाला है नहीं. Okay, never mind. No spoiler. No. I'll take that back. But yes, मेरा इश्क is one of them. नहीं बताओ थोड़ा सा। अब नहीं मैंने बताना, नहीं एक्चुअली स्पॉइलर हो जाएगा ना। अच्छा हल्का सा तो बताओ, हल्का सा, स्पॉइलर ना करो, हल्का सा बताओ। I think that would define who I am exactly inside out. ये possible A lot नहीं। of people are very confused. यार ये इसका क्या मसला है यार, ये कौन है लाइक और वो अभी आपके मेरे शीट पे भी पढ़ा था ना, ये सवाल जरा दिखाइएगा, ये जी मैंने लिखा पहला है। क्या सवाल था? पहले लोग स्टेज पर क्यूबी को देखते हैं, क्या असल में क्यूबी यही है? लेकिन मेरे रिसर्चर ने बड़ा अच्छा, ये सवाल तो बड़ा कमाल है। आमना वेरी गुड, शाबाश। ये जो गाना है ना, ये उस सवाल का जवाब है। रियली? या अच्छा भाई देखो, ये लोग स्टेज पे जिस क्यूबी को देखते हैं, क्या असल में क्यूबी वही है? इसका जवाब मिल रहा है अगले गाने में। यस। आई डोंट थिंक सो। ये अच्छा, तुम अभी कह रही थी कि लोग क्यूरियस हैं कि क्यूबी क्या है। No, I wasn't curious about the curiosity people have. I read that question and I tend to find that question quite prevalent. कि उनको लोगों को बड़ी, एक तो लोगों के पास और कुछ करने के लिए नहीं है ना, तो वो लोगों की जिंदगियों में घुसे हुए होते हैं कि यार बड़ा टाइम है, बहुत टाइम है, फजूल का टाइम है। But if you really want to know, okay, yes, yes we do. Really, you don't see exactly who I am. Really? Yeah. No one actually gets to see exactly who I really am. Just me and my God. तो ये क्यूबी जो हम देख रहे हैं इंटरव्यूज में, पॉडकास्ट में, स्टेज पे, उसके म्यूजिक में, ये और असल क्यूबी में एक पूरी एक वो कुछ और है, ये कुछ और है। Yeah. Oh my God, I'm sorry to burst your bubble if there was one. Really? Yeah. Yeah. हल्का सा कोई ओवरलैप? Yes, sensitive. That's the only thing I could say. Very sensitive. I am. तो वो जो क्यूबी है जो कि जिसको हम नहीं जानते, और तुम कह रही हो कि लोग नहीं जानते असल क्यूबी को, तो हम we love you, we are your fans. I'm not saying the one version. So that we want to know more about you. No. So why are you hiding it? No, I'm not hiding. No, I'm not hiding. There is something called privacy. You know, there's Okay. so much That makes sense. erosion to that. It's like, why do you want to put the whole of yourself, all of it, on social media? Because now we are in नहीं, the that age makes of social sense media. कि आप भाई मेरे म्यूजिक को पसंद करते हैं, आप मेरी आवाज को पसंद करते हैं, love it, enjoy it. Yeah. और ये लेकिन मेरी जिंदगी में क्या हो रहा है तो वो हाँ तो ऐसे कि this I learned the hard way. Because obviously when you're young you make mistakes, you don't know any better, and the best wisdom I have tend to gain is through trial and error, you know, the experiences, and that's why you respect your elders, because they've been there, done that, so they know better. So I feel like with time and with experiences आपको चीज़ों को एक और ही एंगल से देखने का मौका मिलता है. And so through that I realized कि यार people, you need to retain your privacy. Not everyone needs to know everything. Why is that is required of someone who's famous, you know? If हम क्या लोग नहीं हैं, like हमारे, क्योंकि life is not perfect, right? हर किसी के तरह के रोले हैं, तो आप इसीलिए तो लोग ड्रामे बहुत देखते हैं, because चस्का है ना. तुम देखती हो? इतना फजूल टाइम नहीं है ना मेरे पास. कॉग्निटिव रिसोर्सेज का पता है आपको? कॉग्निटिव Hello? रिसोर्सेज का. सॉरी मैं ये नहीं कह रही. Hello? नहीं मैं उसी बात पे आ रही हूँ. मुझे तो डर लगने लग गया आपसे. क्या? मैं ड्रामा नहीं देख, मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं. एक्सक्यूज मी, क्या आप कहना चाह रही हैं? कॉग्निटिव रिसोर्सेज, लेट मी, क्या कहना चाह रही हैं आप?
नहीं नहीं, टाइम की बात नहीं। तो पता है मैं एक एक्टर हूँ और मैं पाकिस्तानी ड्रामों में आता हूँ, यस यस, आप अच्छे और रोल तो मेरे करते मुंह पे होंगे। बैठ के कह रही हो। यही तो मसला है ना मेरा। अच्छा नहीं, क्यों नहीं देखती हो ड्रामे? नहीं, कॉग्निटिव रिसोर्सेज की, फजूल जी। टाइम की बात नहीं है, क्योंकि फजूल कॉग्निटिव रिसोर्सेज नहीं है ना, और भी प्रायोरिटीज़ है ना जिनको आपने थोड़ा सा, जिनके लिए स्पेयर कॉग्निटिव रिसोर्सेज आपको रखने पड़ते हैं, वो ड्रामे में लग कॉग्निटिव गए रिसोर्सेज पे कॉग्निटिव, अब ना कवर अप कर रही है, तुमने क्या दिया जो कहना था मेरे पास फजूल टाइम नहीं है पाकिस्तानी ड्रामे देखने का। तो इन सिंपल वर्ड्स। या यार इतना बुरा काम भी नहीं करते Sorry. हम लोग, नहीं, हमारे ड्रामे आप- वैसे बुरे नहीं है, प्लीज देखिए, यार नहीं लेकिन प्लीज देखो, एक दो ड्रामे मैं तुम्हें रेकमेंड करूं। मेरी वालदा जो है ना, वो अभी आई हुई थी कुछ दिनों पहले अमेरिका से, तो वो कोई ड्रामा देख रही थी, तो उनके साथ ऑब्वियसली बैठ के मुझे थोड़ी झलक मिली, जबरदस्ती। ज़बरदस्ती, हाँ। और मैं सर पकड़ के बैठी हुई थी, मैंने कहा यार ड्रामों का रियलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है कुछ। आई डोंट वांट टू ड्वेल डीपर इनटू इट, बट लेकिन जनरली जो है Okay. वो अगर आप देखें तो इंटरटेनमेंट में मूवीज भी होगी। आई डोंट वॉच मूवीज, आई डोंट वॉच सीरीज, वेरी लाइक कभी कभार, बहुत कम, हार्डली, नॉट दैट आई डोंट, बट आई डोंट रिलीजियसली। और पाकिस्तान में, और इवन इन इंडिया आई सपोज, इवन इन अमेरिका फॉर इंस्टेंस, पीपल रिलीजियसली फॉलो इट। बट कोई ऐसी इम्पैक्टफुल चीज़ आप देखें ना जिससे आपकी लाइफ बेहतर तो हो, रियलिटी के इधर इधर कुछ नज़दीक तो हो, वो कहीं और ये फिक्शनल की पता नहीं कौन से कोने में जाके वो चीज़ एक बन रही होती है। जैसे वो इंडियन ड्रामे पुराने जब डिश नेटवर्क होता था तो पाकिस्तान में सास भी कभी बहू बहू थी, थी, है ना? वो वाले अनरियलिस्टिक किस्म की वो जो स्टोरी लाइंस होती थी, उस तरह की चीज़ें बनने लग गई हैं apparently। अच्छा वैसे मैं तुम्हें ना दो तीन ड्रामे रेकमेंड करूंगा, यू मस्ट वॉच दिस। हाँ, आपने एक तो मुझे बताया था ना, मुअम्मा। उस दिन मेरी क्यूबी से बात हो रही थी, मैंने कहा मुअम्मा जरूर देखो, दो तीन और भी बताऊंगा। ओके, मेरा कोई ड्रामा नहीं देखा तुमने? आप बताएं ना, अच्छा बताएं तो सही। कभी मैं कभी तुम देखो, कभी कभी मैं कभी तुम। अच्छा, लेट मी गेस, दिस इज रोमांटिक। हाँ ओके, एक देखो, वो रोमांटिक नहीं, वो तुम्हारी टाइप का है। मुअम्मा। नहीं नहीं, हाँ मुअम्मा भी नहीं, एक और जो अपना बताने लगा हूँ, बहरूपिया। बहरूपिया। बहरूपिया, बहरूपिया, हाँ। अच्छा, वो जरूर देखो। इंटरेस्टिंग। ये इट साउंड्स अ बिट मोर, क्या कहते हैं, रियलिस्टिक। हाँ हाँ, ओके। देखो देखो बहरूपिया तो हमारे देखो, यहाँ मैं क्यूबी को राजी कर रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री को देखे कुछ। अच्छा क्यूबी, बहुत मज़ा आ रहा है तुमसे बात करके, मेरा दिल ही नहीं कर रहा, पता नहीं कितने मिनट हो गए भाई बॉयज? 30। Really? चलो अच्छी बात है, 38 रैप अप करते हैं, minutes. रैप अप। रैप अप करते हैं, लेकिन लास्ट टू क्वेश्चंस। वन, where do you see yourself in 20 years from now? I don't think about tomorrow. 5 years, I don't think about tomorrow. 2 years, I have no plans. 2 days? हाँ, 2 days कर सकते हैं। No, I don't make plans. I do have aspirations, of course. क्या है? हमें अपनी एक एस्पिरेशन कुरातुलैन बलोच बताओ जिसमें हम तुम्हें ज्वाइन कर लें। We will send you blessings for that. That is hard to say. There are quite a few of them. एक दो बताओ। So I aspire to be a hermit. कुर्रा यार, उस पे अगर किसी से ये जवाब आ सकता था वो क्यों भी ही थी। आई एम नॉट सरप्राइज्ड वैसे। Yeah. अच्छा, No, I'm joking. no obviously. please, Yeah. no if you're serious, I No, respect that. I seriously have no plans. I don't see myself anywhere in 5 years. I definitely Aspiration evolving. क्या? Aspiration is to just become a better version of myself, and whatever entails. As far as that is concerned, I'll go after it. You know what I mean? One last question. Yeah.
क्यूबी के पास एक जादू की छड़ी है, अ मैजिक वॉन्ड, और तुमने करना है और इस दुनिया की कोई एक चीज़ बदल जाएगी, या तुम्हारी, या हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री की, या हमारे मुल्क की, या दुनिया की, इस कायनात की, या दुनिया व्हाटएवर। कायनात तो नहीं, खैर दुनिया की कह सकती हूँ। लाइक हमारी जो ज़मीन की जो ज़मीन के हालात चल रहे हैं। क्या आपका सॉरी क्वेश्चन कार्ड? क्वेश्चन ये कि तुम्हारे पास एक मैजिक वॉन्ड है, तुमने करना है और जादू की छड़ी से कोई एक चीज़ बदलनी है। What would you like to fix? End the suffering of people of Gaza, Palestinians, for sure. Yeah, no doubt about that. If I had that magic wand and I could do something, yeah. Or, in fact, any people that at the moment are suffering. There's so much suffering in the world, and even though I did say to you that I don't want to talk about nationalism or religion, I suppose the root cause of the issue, the suffering of the people at the moment are both of these things, religion and nationalism, in my humble opinion. Obviously, I'm not an expert, but from someone who is a human being myself, I feel like people use nationalism and religion to inflict some kind of suffering on other people because they think their God is bigger, their religion is better, you know, their country ought to defend itself, or whatever rubbish people believe in the name of, especially nationalism. क्योंकि religion अब आगे बात इस पे कर ही रहे हैं, तो religion was supposed to make you a better human being. There were a set of laws or there were boundaries that human being, क्योंकि अब आप हालत देख लेना दुनिया की, अगर ये boundaries ना होती तो वो standard ना होता मय्यर करने का कि आपकी limit किधर है, for instance, right? आपकी boundary किधर है। अब उसको भी ये जो है ना जूते की नोक पे रखा हुआ है दुनिया ने, और कर तो वही रहे हैं, because there's no boundary. But that is why religion was there to set a standard based on which, you know, you were supposed to act in your own life. I don't know if I'm making any sense, but yeah, I would end the suffering of the people, of a lot of the people who are suffering at the moment. QB, you are unique. You are crazy, you are beautiful, you are precious. I'm so honored to be your friend. Oh, thank you. I'm humbled. I'm humbled. I'm in work in progress. Thank you for having me. It was lovely. Work in progress. Yes. Thank you for having me, Tasi. It was lovely chatting with you.